Good morning, sir.
अगर तेरा ब्याह होना तेरी भूआ घर मासी घर बैठी होवे ते की ब्याह करना फिर पहला मासी का मका फिर तेरा ब्याह होना साफ कहते सोहरे लोग किसी ने नहीं जाना फिर पेके बाय कार्ड करो फिर सारे एक करया करो ना कोई नहीं जाएगा ब्याह जिस तक रूमी का काम नहीं मुकदा अभी उठ के मैं कर छे का सामान दे शिवाची रोटी खाए मंदी बदल चुका है जुतियां खा के पत्थर चट के वापस आना है Hello. Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Am I audible to you? All of you? Yes, sir. Yes, sir. पता क्यों ना ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਜੇਬ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਣ ਦੇ I'm audible to all of you? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ Yes, sir. ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ Yes, ਲੈਣ ਦੇ ਹੋਏਗਾ ਬਿਨਾ ਅੰਕੂ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੱਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਲੈਣ ਦੋ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ ਚੁੱਪੇਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦਾ Yes. सर आवाज नहीं आ रही Yes, sir. आवाज नहीं आ रही. सर आवाज नहीं आ रही सर.
सर आवाज नहीं आ रही। कौन? सर your voice is not audible, sir. Hello, sir. Good morning. Audio glitch, sir. Hello, Hello. 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 hello, sir. Hello, Hello. 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 yes, sir. Hello, yes, because Hello. 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 Am I audible to all of you? hello, Jasmeet Kaur. Hello, Jasmeet Kaur. I am audible to you. क्या Yes, sir.
सर सर आवाज आ आपकी रही है आवाज सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Yes, sir. सर सर एक्सक्यूज मी, आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे वेट. हेलो. यस सर। आई एम ऑडिबल टू यू. यस सर। Yes, sir. बच्चे थोड़ी वायर्स में दिक्कत है. आई विल करेक्ट देम. वेट करो, मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया कुछ अभी. वेट करो. यस Okay, sir. Okay, sir. हेलो. आई एम ऑडिबल टू यू. Yes, sir. यस सर। यस सर Yes, sir. करते हैं शुरू. हेलो. हेलो. बच्चे आ रही है आवाज? Yes, sir. Yes, सर हेलो. यस सर। लेट्स स्टार्ट बच्चे. आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू. यस सर। हेलो. Yes, sir. यस सर Yes, sir. Sir, you are audible now. कोई बात नहीं. सर इट्स वेरी लो. हेलो. हेलो. Yes, sir. हेलो. नहीं सर आवाज है नहीं सर कुछ नहीं. It's all DC all the time. DC fandom is unlike anything you've ever seen before. हेलो. Jim Lee is that. It's crazy, यस right? सर। This worldwide mega event is for DC. सर पीछे डिस्टरबेंस बहुत आ रही है। यस सर
Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. आवाज आ रही है आपकी. हाँ जी. Yes, Yes, sir. आ Yes, रही है. sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Start करो, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. Board visible नहीं है. Boolean algebra is visible. Visible है sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, 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 हाँ sir. जी सर visible है सर. Yes, sir. Visible. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर आवाज ही नहीं सर आवाज क्लियर नहीं है.
A into सर एंड को कन्वर्ट करना है और में और सर A plus B plus C. यस सर A plus B C यस सर Sir A dot A not equals to 0. A dot A bar equal to 0 0. yes Yes, sir sir. yes sir Yes, yes sir sir. सर एक बार डुअलिटी थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दो। सर आप माइक म्यूट है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गान में लागल बाटे रे झूलाइले बा गिराई छोड़ो अरे गिराइले बा उठा Excuse me, sir. Disturbance बहुत है sir. यस सर यस सर A, sir. A. यस सर Yes, sir.
यस सर। यस सर क्लियर है सर क्लियर है। वन बिकॉज एनी वैल्यू ऑफ आई, तो इसके अकॉर्डिंग जब a प्लस बी इट शुड बी इक्वल टू विद b प्लस a. तो अकॉर्डिंग टू दिस वन यू हैव टू प्रूव एनी लॉ. So now go to the next example, associative law. Associative law is now associative law, that is a plus b plus c, it also equal to a plus b plus c, that is in the form of your AND operator. Oh sorry, OR operator. If you are using AND operator means into पे use करोगे, it should be a dot b dot c equal to your a dot b dot c, that is your associate law. Clear? So basically हमारा कुछ पर्पस है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बुलियंस लॉ को हमने जो लॉस किए हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा एक थर्ड लॉ आएगा अब, that is your distributive law. Distributive law is now a dot b plus c equal to a dot b plus a dot c. So last is distributive law. This is now distributive law. Distributive. Yes sir. Clear? You can solve this and prove equal with each other by making the truth table for that. जो मैंने पहले truth table बनाया था कम्यूटेटिव लॉ से आपका, उसके अकॉर्डिंग आपकी ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि it should be equal to left hand side, it should be equal to the right hand side. Means you have to make a dot b plus c equal to a dot b plus a dot c. You can prove by them by making the truth table in that. Okay. So now next is now go to your slides. Identity law. Identity law or idempotence law. It should be now a plus a equal to a. That is now identity law. A plus a equal to a dot a, it is remain a. Means for example, take the example, if a की value आपकी 0 है, 0 plus 0 is now 0, so that is a plus a equal to remain a. Okay. If a dot a is equal to a, if a is 0, then answer remains also 0, it should be equal to here a. Clear the identity law? But that are the some laws that is using for the simplification of your boolean expression. हमारे पास जितने भी boolean expression हो गए उसको minimize करने के लिए हमारे पास कुछ method है. Okay, my first method is now by making simplification of your boolean expression by using boolean laws. Boolean laws के according हम उस laws को उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं आइदर बाय यूजिंग के मैप. ये हमारी कुछ आगे लॉजिकल फैमिली है जो हम आगे डिस्कस करेंगे. माय फर्स्ट स्टडी इज नाउ टू अंडरस्टैंड द बूलियन लॉस. हम सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे बाय यूजिंग बूलियंस लॉ, देन गो फॉरवर्ड योर के मैप मेथड और क्यूएम मेथड. इसके अगला आपका एक लॉ आता है दैट इज योर रिडंडेंस लॉ. उसमें क्या मेंशन किया गया चेक करिए. दैट इज आल्सो नोन एज योर एब्जॉर्प्शन लॉ. a प्लस ए बी
equal to A. Okay, A dot A plus B equal to A. That is known as your absorption law. इसको अगर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो A ही आएगा. इसको सॉल्व करके देख लो. जस्ट लाइक अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, चेक दिस वन. A को कॉमन निकालूंगा 1 plus B. It should be now 1 plus B. Always remain here 1. So A dot 1 equal to A. So that answer is now A. I have to prove this one absorption law. A plus A dot B equal to A. So prove करोगे तो all of you understand that law, absorption law. Hello. Yes, sir. Okay, okay, बच्चे. Yes, sir. Now next one. हाँ जी सर. Complementary law. What is now the complementary law? Means if A plus A bar, it should remain the value 1, or either dot operator A dot A bar, it should be always here 0. Clear? That is your complementary law. Clear, all of you? Now next one is now involution. Involution means that is a double inverse. किसी चीज का इनवर्स करेंगे और उसका फिर इनवर्स करेंगे. It should be remain the value remains A. Means A के ऊपर अगर डबल बार आएगी, it should be equal to with their A. डबल बार को कई बार बच्चे हम ऐसे कॉमा में भी लिख देते हैं. It means that is the bar on that A. Clear? Clear Sir, up to your involution. involution law? Any problem up to this one? Hello. क्लियर है बच्चे? Yes, sir, clear है. चलें आगे. Now goes to the last one, that is your De Morgan law. ये सभी स्लाइड पे बच्चे मेंशन दिया हुआ है. आपकी स्लाइड पे देखोगे तो उसमें ये सभी लॉस मेंशन है. De Morgan law. De Morgan law means A plus B plus C with their full bar hello. Now that is your De Morgan law. So means if bar on all this one, it should be equal to A bar dot B bar plus C bar. इसका एक रूल होता है बच्चे. Listen carefully. Break the bar and change the sign. ये बच्चे जितना भी हमने आज के लेक्चर से आगे स्टार्ट कर रहे हैं बूलियन एक्सप्रेशन से, इट शुड बी यूजफुल टू अप टू द लास्ट लेक्चर ऑफ द डीसीएलडी. ये ध्यान से सुनना. किसी को प्रॉब्लम होगी तो मेरे को यहां तक पूछते रहना. तो ये जितनी भी सिंप्लीफिकेशन है हमारी लास्ट तक हमें काम आएगी. क्लियर? तो इसमें एक्सप्रेशन था A प्लस B प्लस C बार, सबके ऊपर बार थी. सो इसमें डी मॉर्गन लॉ होता है. डी मॉर्गन लॉ मींस चेंज द बार, ब्रेक द बार, चेंज द साइन. बार को ब्रेक किया एंड चेंज एंड स्प्लिट द साइन. ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन. बार को चेंज किया, स्प्लिट किया, और पॉजिटिव को जो हमारा और ऑपरेटर था उसको हमने चेंज कर दिया एंड ऑपरेटर में. एंड ऑपरेटर मीन दैट इज द मल्टीप्लाई ऑपरेटर. इसकी एक इनवर्स एग्जांपल भी देख लो. इफ A डॉट B प्लस C, इट मीन बी इक्वल टू, अगर इसके फुल के ऊपर बार है मान लो दिस वन, सो यू हैव टू मीन A बार प्लस B बार प्लस C बार प्लस ब्रेक द बार एंड चेंज द साइन. All of you visible by mode and understanding the De Morgan law, all of you? Yes, sir. Clear है बच्चे सबको?
Yes, sir. Clear up to all the Boolean laws for that? सबको clear है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Any doubt up to this law? हमने Boolean law जितने भी किए हैं, that is useful for by using. एक चीज आपको बता देता हूँ अभी यहाँ से. चलो next slide में. Properties of zero, properties of one, commutative law, associative law, distributive law, additive, De Morgan theorem. So I have to give one poll to all of you. उसका मुझे आंसर दो अभी. बच्चे पोल का आंसर दो मेरे को. I have give you the polling raising. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done. Done, sir. Sir, is it a break time? It is a poll time, bro. Ah, yeah. Guys, do you know Messi is leaving Barcelona? Option A. Okay. Clear all of you? Okay. And law according Yes, to sir. A dot A, it should be now the value is now A. Clear? Yes, sir. Clear. Clear all of you? Yes, sir. Okay. So इसके according we have to go some simplifications. हम कुछ मेथड करते हैं कि हमारे जो एक्सप्रेशन है उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे. क्लियर? कुछ एक दो एग्जांपल्स मैं आपको करवाता हूं बोर्ड पे. चेक करिए कि हमारे पास अगर कोई बूलियन एक्सप्रेशन गिवन हो एंड हाउ टू मिनिमाइज दैट वन. फॉर एग्जांपल, if this is a boolean expression I have given in the board, a b bar plus a bar plus ab plus ab
with your full bar. Now, marker. This is the expression given. All of you have the notebook and the pen in your hand. Yes, sir. Okay. Yes, I have sir. the Yes, sir. some expression, boolean expression. ये जो expression होता है इसको हम बोलते हैं boolean expression. You have to simplify this expression by using your boolean law. This expression is now AB bar plus A bar plus AB with your full bar. Tell me the answer right now. इसको solve करके हमारे पास answer क्या आएगा? Sir, 0. 0. Yes, sir. Okay, okay. I have to. सर 0 आंसर है. देख लो सभी देख लो एक बार. This is your full bar. If you apply De Morgan theorem at that, so that it means A B bar with double bar dot A bar dot A B bar. By apply De Morgan. डी मॉर्गन अप्लाई करोगे तो ऐसा ही होगा कुछ चेंज. यस सर. कोडिंग ठीक है. अब Yes, sir. तो मिनिमल करेंगे ए सर ए के ऊपर 2 बार नहीं आएंगी डबल सर. बार है. दैट इज सर ए के ऊपर भी डबल बार आएगी. इन्वोल्यूशन सर लॉ. ए के ऊपर ए डबल बार होगा. इट शुड बी इक्वल टू विद ए. A plus बार B. डबल बार होगा. इट शुड बी नाउ ए बी बार. ओनली ए बी. दैट इज ए बार. दैट इज नो सर. बी. सर इसको सेकंड ऐसा ही स्टेप होगा में सॉल्व ए बच्चे. सर ए के ऊपर भी 2 बार आएंगे. ए के हाँ ए के ऊपर भी 2 बार आएगी. ओके क्लियर है. इट शुड बी वंस अगेन ए. Clear? Yes, Yes, sir. Now, if you take AB and AB bar, this is now A and A bar. AB को मान लो for example आपको मान लो C है, तो this is now C bar. Yes, sir. I have taken example. तो C dot into C bar की वैल्यू क्या होती है? C dot C bar is equal to your 0. Yes, sir. By the 0, using yes, sir. supplementary law. तो मींस अगर इसको वैल्यू मल्टीप्लाई Yes, 0 आएगा तो बीच में a है तो फाइनल रिजल्ट क्या आपका आएगा 0. क्लियर ऑल ऑफ यू. 0. Yes, sir. क्लियर है बच्चे. Yes, sir. Yes, sir. सो आई हैव गिवन वन पोल टू ऑल ऑफ यू. तो उसको सॉल्व करो. एक और मैं इस पोल में मैंने एक एक्सप्रेशन दिया गया सिंपलीफिकेशन के लिए. चेक करो इसको. नाउ आई हैव लॉन्च द पोल. फिर आगे चलते हैं. हमें चुप रहा. मैं पढ़ने में रौला पाई जांदे. जाओ चल जाओ. हाँ पूरा माइक बंद करना. हो गया सॉल्व सबका. Yes, sir. 40 स्टूडेंट ने सॉल्व किया. बाकी भी पोल करो सभी जल्दी.
हेलो हेलो Yes, sir. I am audible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. I am audible to all of you. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेलो Yes, Yes, sir. हेलो हो गया? Yes, sir. अभी 10 स्टूडेंट्स पेंडिंग है बच्चे, कर लो जल्दी। इसको बोर्ड पे भी सॉल्व कर दूंगा मैं, जैसे किसी को प्रॉब्लम आएगी तो। सर इसका आंसर क्या है? I have to solve in this board also. A plus B into A plus C. That is a multiplication A dot A plus A dot C plus A dot B plus B dot C. Okay. A dot A, it should be equal to now A. A. Yes, sir. Here is AC, AB and BC. Okay. Common is now A. 1 plus C, AB plus BC. सुन रहे हो बच्चे, देख रहे हो सभी? Yes, Hello. sir. A 1 plus C, it should be equal to 1. So that is the value A plus AB plus BC. Okay. Once again, I have to take the common A, that is the 1 plus B plus BC. So as a result, your answer is A plus BC. 1 plus B is also equal to your 1. So that is the final answer, A plus BC. Clear all of you? Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Clear है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे। इसके एक और पोलमा देता हूं आपको, इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल सिंपलीफिकेशन के लिए, फिर आप चेक करिए। once again I have give the third poll to you, all of you. Now solve this one. All of you received the poll third? Solve this one also. Poll is now A plus B bar plus AB. A plus B bar plus AB. A plus B bar into A bar B. Now find out this answer. Solve करो बच्चे इसको।
Option is now 1, 0, A, and none of these. Solve now. हुआ बच्चा सॉल्व? हेलो स्टूडेंट? Yes, sir. डन। ओनली 35 ने किया अभी, बाकी सॉल्व करो बच्चे जल्दी। सर इसका आंसर क्या है? आप आंसर फिल कर दो, मैं सॉल्व करवाता हूँ। 10 students are pending. Just do run down. बच्चे जिसका पेंडिंग का कर दो सॉल्व जल्दी। Then I have closed this poll also. फॉरवर्ड करें आगे से। Five are pending. Do it right now. I have closed this one, otherwise this poll. बच्चे आंसर इज नाउ, आई हैव टू सोल्व दिस वन। देखो चेक करो बोर्ड पे। इफ दिस एक्सप्रेशन आई हैव राइट a plus b bar here and ab, okay, you have to multiply this one, that is the a bar b plus a bar b into b bar. That expression, all of you, hello? So if Yes, sir. Yes, solve sir. this one, a plus b bar plus ab, this expression is now 0 because a dot a and b dot b bar means 0 plus 0 0, so that is 0. अगर 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आंसर क्या आएगा? That is now, result is now 0. So that's the final answer is now 0. सर एक के साथ बार थी? सर एक के ऊपर बार थी, a bar dot b. This is now, expression is now a plus b bar plus ab, a plus b bar into a bar b. सर मुझे ए बी बार लगा। कोई बात नहीं बच्चे, पता है क्या होता है, जैसे एक्सप्रेशन में ऐसा लिखा गया ना a बार b, तो मीन a के ऊपर बार। क्लियर दिस वन? ये मीनिंग होता है। सो इसका आंसर बेसिकली था 0। एक और एक्सप्रेशन कर लेते हैं, बोर्ड पे करते हैं एक और एक्सप्रेशन।
minimize this one, AB plus C and AB plus D. To minimize by using Boolean laws or Boolean algebra. इसको मिनिमाइज करना है बच्चे by using Boolean law or Boolean algebra. Okay. Now see this one. Multiply this. A dot B. Answer is now AB. अगर मैं इस फिगर को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, this is now A dot A. A dot A should be now A. Clear this one? I have write AB. One multiply this one, that is the ABD. This multiplication is ABC. This is now CD. Clear? Now, I have to take common AB in these three terms. This is AB, 1 plus C plus D plus CD. देखो यहां तक क्लियर हुआ सबको, all of you? Yes, sir. Clear? Yes, sir. No, sir, please repeat. Repeat. I have repeat once again, बच्चे. I have to given this expression y is equal to AB plus C into AB plus D. Okay. I have to multiply this. I have to minimize this expression by using Boolean law. Okay. Boolean law से minimize करना है तो सबसे पहले हम इसको multiply करेंगे. AB को AB के साथ multiply करेंगे. It should be like A dot A is equal to A. A ही होगा. AB dot AB से multiply करके क्या आएगा? AB. AB multiply with D. ABD. ABC आ जाएगा multiply करके. C को D के का करेंगे CD हो जाएगा. Clear? तो इन तीनों टर्म में से मैंने AB को कॉमन निकाल लिया. तो 1 प्लस D यहां से आया और C यहां से आ गया प्लस CD रिमेन रहा. तो 1 प्लस C प्लस D की वैल्यू क्या है? 1. Yes, sir. A dot B 1 plus CD. जो फाइनल रिजल्ट इज नाउ AB प्लस CD. देखो क्लियर है बच्चे सबको? ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हम आज से हमने जो डीसीएलडी स्टार्ट की है, तो समझो यहीं से असली डीसीएलडी लॉजिकल एनालिसिस हमारी यहां से शुरू हो गई है. स्टार्ट दिस वन फ्रॉम दिस Boolean expression. How to minimize the Boolean expression with the help of Boolean laws by using two theorem, that is the principle of duality and the De Morgan theorem. Clear है यहां से Boolean laws? अब कोई भी Boolean law आपको minimize करने के लिए आए, you can solve this one. Yes, sir. चलें आगे. Now go to the next slide. Representation of Boolean expression. Now बच्चे हमारे पास Boolean expression में कुछ टर्म्स होती हैं. It should be known as your SOP and POS. आगे किसी ने नाम सुना हुआ बच्चे इसका कि नहीं? That should be known as your Yes, sir. sum of product. इसको ध्यान से सुनना बच्चे. That is the some confusing one. जब आप अच्छी तरह कर लोगे. POS is now product of sum. Product of sum. Clear? These are the two forms. It should be also known as SOP and POS form. Clear? So now what is an SOP form is now sum of product term. Just like an example, sum of product term means sum of the product terms. Product terms कौन सी है? AB is now product, BC is now product, BD is now product. So sum of product is now sum of these product terms. So this form is known as your SOP form. Otherwise second term is now POS. POS now product of sum. Just like example A plus B जो मैंने स्लाइड्स पे भी दी गई है, A plus C, it may be your B plus C. Means product of sum terms. ये product है sum की terms का. Clear the expression SOP? What is the SOP and POS form? Clear? All of you clear this one? Hello. Yes, sir. Okay. No, sir, repeat करियो सर एक बार. बच्चे this is the clarification of this term is known as your Boolean expression में हमारी कुछ terms होती है that should be known as your SOP or POS form.
SOP is now sum of product, POS is now product of sum. Okay, product of sum. So sum of product की एग्जांपल मैंने लिखी है, मेंशन की है, AB plus BC plus BD मींस जो सम होगा वो प्रोडक्ट की टर्म का सम होगा, तो दूसरी तरफ प्रोडक्ट ऑफ सम A plus B, A plus B, C क्या है, सम, और प्रोडक्ट ऑफ सम, दैट इज योर POS फॉर्म. ओके सर. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ अपनी, वहां पे हमारी स्लाइड है, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड इज canonical form of boolean expression or standard form. In standard SOP and POS, each term of boolean expression must contain all the literals with and without bar that has been used in boolean expression. If above condition is satisfied by the boolean expression, that expression is known as a canonical form of boolean expression. Now कैनोनिकल फॉर्म बूलियन एक्सप्रेशन की क्या होती है कि हमारे पास अगर कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन है, उस बूलियन एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल हैं, जितने भी SOP और POS टर्म्स हैं हमारी, उसमें सभी वेरिएबल होने चाहिए. फॉर एस एग्जांपल, उसने एक एग्जांपल दिया, देखो, कन्वर्ट AB प्लस BC इनटू द कैनोनिकल स्टॉप स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज इस एक्सप्रेशन पे हमारे पास कितने वेरिएबल आ रहे हैं, 3 वेरिएबल, A, B एंड C, 3 ही वेरिएबल है इसमें. यस और नो? हेलो, 3 वेरिएबल है, बट ईच एक्सप्रेशन पे उसपे 3 वेरिएबल नहीं है. यहाँ पे AB है, वहां पे BC है, दैट व्हाई इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड SOP फॉर्म. इसको स्टैंडर्ड SOP में बनाने के लिए और कन्वर्ट करने के लिए कैनोनिकल फॉर्म में आई हैव टू राइट दिस एक्सप्रेशन. अगर मैं इस पे ये फिगर ऐड कर दूंगा तो मेरे एक्सप्रेशन को कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर मैं AB C plus C बार को ऐड करूंगा, दैट इज रिजल्ट इज नाउ 1, 0 plus 1 1 होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब इसको आगे मैं मल्टीप्लाई करूं, ABC बार ABC प्लस A बार BC, ABC 2 बार आ गया, तो मेरा फाइनल रिजल्ट आएगा ABC प्लस ABC बार प्लस A बार BC. तो ये जो फाइनल मेरा रिजल्ट है, दैट इज अ कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड SOP फॉर्म. क्लियर? दिस इज नॉट ए नॉन स्टैंडर्ड, ये नॉन स्टैंडर्ड है. क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर ऑल ऑफ यू हाउ टू कन्वर्ट द नॉन स्टैंडर्ड SOP टू स्टैंडर्ड SOP और कैनोनिकल SOP? क्लियर है बच्चे? हेलो एवरीवन, क्लियर ऑल ऑफ यू? सर क्लियर है. चलो जी आगे चलते हैं. आगे अब आगे है, अगर सेम एग्जांपल हमारे पास POS में आ जाए तब, मान लो POS का एक एक्सप्रेशन लिख देते हैं इसमें, हाउ टू कन्वर्ट स्टैंडर्ड POS इनटू द स्टैंडर्ड POS. दैट इज द मेन y की वैल्यू है A plus B, A plus C, B plus C bar. This is the standard POS form or non-standard POS form? Tell. Non-standard. Because each value, हर एक में बीच में उसके तीनों वेरिएबल प्रेजेंट रही हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे? I have to write this expression A plus B. कौन सा वेरिएबल मिसिंग है इसमें? C. तो हम यहाँ पे C डॉट C बार कर देंगे, तो इससे मेरे एक्सप्रेशन को कुछ फर्क पड़ेगा? C डॉट C बार करके? नो सर. नो सर. ओके, A plus C plus B डॉट B बार, then B plus C बार plus A डॉट A बार. क्लियर हो गया बच्चे यहां तक? क्लियर है? सो हमारे पास एक ना बूलियन एक्सप्रेशन में एक एक्सप्रेशन होता है A प्लस BC इक्वल टू A प्लस B इक्वल टू A प्लस C. ये हमारा बाय लॉस के अकॉर्डिंग ये एक फॉर्मूला होता है. A प्लस BC को हम A प्लस B भी लिख सकते हैं और A प्लस C भी करेगा. अगर इस चीज को मिनिमाइज करोगे, इट शुड बी इक्वल टू A प्लस BC. तो यही फिनोमेना हम यहाँ पे यूज करेंगे. मींस इस एक्सप्रेशन को हम राइट कैसे करेंगे? A प्लस
ये ए हो गया, ये बी सी हो गया, तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बार। देखो ये चीज पता लगा एक्सप्रेशन मैंने ये कैसे लिखा, ये एक्सप्रेशन ऑल ऑफ यू अवेयर दिस वन, समझ लगी है किसी को एक्सप्रेशन ये मैंने कैसे लिखा? यस सर, ए प्लस बी को ए मान लिया, ए प्लस बी को मैंने ए मान लिया है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, दिस इज योर बी सी। तो ए प्लस बी, दिस इज ए प्लस बी एंड दिस इज ए प्लस सी। सिमिलरली ये दोनों एक्सप्रेशन को भी ऐसे राइट अप कर लोगे, सो दैट इज द फाइनल स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। क्लियर है सबको? सर ये समझ नहीं आया, एक बार बताना। ये देखो बच्चे ध्यान से देखो, आई हैव टू राइट y इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, दिस इज द स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म और नॉन स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म? नॉन स्टैंडर्ड, बिकॉज वन वेरिएबल इज मिसिंग इन ईच टर्म। यहाँ पे c मिसिंग है, यहाँ पे b मिसिंग है, यहाँ पे a मिसिंग है, तो आई हैव टू कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, आई हैव टू ऐड जो सा वेरिएबल मिसिंग है वो मैंने मिसिंग कर दिया c इंटू सी बार। c इंटू सी बार करूंगा तो उससे मेरे एक्सप्रेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट शुड रिमेन द वैल्यू 0। a प्लस बी की वैल्यू ऐसे, यहाँ पे b मिसिंग था, मैंने b इंटू बी बार कर दिया, b प्लस सी बार की जगह a प्लस a बार ऐड कर दिया। क्लियर? अब इस एक्सप्रेशन को मैं मिनिमाइज करना है, बिकॉज आई हैव टू रिट्रीव वन एक्सप्रेशन जिसमें मेरे तीनों वेरिएबल आए। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है a प्लस बी सी इज इक्वल टू a प्लस बी a प्लस सी, मींस a प्लस बी इंटू a प्लस सी। ये मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज करोगे तो यही आएगा आपका आंसर। क्लियर? यही एक्सप्रेशन मैंने ये वाली टर्म में अप्लाई किया है, यहाँ पे a प्लस बी को मैंने a मान लिया है और इसको बी सी मान लिया। a की वैल्यू क्या आई? a प्लस बी, दिस इज a, और b क्या है? c, तो ये मैंने c लिख दिया। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है आपकी? a प्लस बी, और यहाँ पे a प्लस बी है और वहां पे c की बार की c बार लिख। क्लियर है आप बच्चे? क्लियर है। हेलो, नाउ गो टू द नेक्स्ट वन। ये कुछ स्टैंडर्ड आगे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैंने पीयूएस को मैंने आपको एग्जांपल करवा दिया बोर्ड पे, वैसे ये यहाँ पे एग्जांपल गिवन की गई है। नाउ next topic is now min term, max term. Okay, so now individual term of canonical SOP product is known as your min term, and individual term of canonical product of sum is known as your max term. इसको एग्जांपल से देखते हैं बच्चे। इसका मीनिंग ये है कि अगर मेरे पास जो एसओपी टर्म होगी, एसओपी टर्म है मान लो ए बी प्लस बी सी, दिस इज एसओपी और पीओएस? टेल। A B plus B C, SOP. So each individual term in SOP is known as your min term. इस एक टर्म को हम min term करेंगे। Clear? And max term is now individually each and every term in POS form. POS में इसको बोलेंगे हर इंडिविजुअल टर्म को max term। क्लियर हुआ बच्चे? What is known as your min term and what is known as your max term? A plus B max term। A plus B max term means पोस के एक्सप्रेशन में जो हमारी इंडिविजुअल टर्म्स होंगी उसको हम मैक्स टर्म कहेंगे। एसओपी में हमारी जो इंडिविजुअल टर्म होंगी वो शुड बी नोन एज योर मिन टर्म। अब देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, मिन टर्म्स को लिखते कैसे हैं और मैक्स टर्म को कैसे लिखते हैं। आई हैव द गिवन वन स्लाइड टू यू, आपको स्लाइड शेयर में एक स्लाइड दिख रही है जहां पे वैल्यू दी गई है मेरी ए और बी की। फॉर एग्जांपल मैं ए और बी लेता हूं, वहां एक्स और वाई लिखा हुआ है। ए और बी को टू वेरिएबल में ऐसे लिखा जाता है, जीरो वन वन जीरो वन। दो वेरिएबल्स को हम ट्रुथ टेबल में ऐसे ही लिख सकते हैं।
ओके यस सर। सो इसके अकॉर्डिंग हमारी मिन टर्म कैसे लिखेंगे देखो, नो मिन टर्म शुड बी रोट, इट शुड बी डिनोटेड बाय a small m and max term should be denoted by your capital M. क्लियर? ये जहां पे भी DCLD में स्मॉल m लिखा होगा इट शुड बी नोन एज योर दैट इज योर मिन टर्म, जहां पे भी कैपिटल M लिखा होगा इट मीन दैट इज योर मैक्स टर्म। ओके, तो मिन टर्म 0 को हम मान लो मिन टर्म M0 जो हमारी होगी वो क्या होगी, A बार एंड B बार। A डॉट B बार क्यों लिखा, बिकॉज मिन टर्म जो हमारी लिखी जाती है दैट इज इन द टर्म ऑफ योर एसओपी एक्सप्रेशन, दैट वे वी आर यूजिंग इन A डॉट एंड ऑपरेटर में। M1 की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1, A बार B, M2 नहीं सॉरी हाँ ओके A B बार, M3 इज इक्वल टू A B। तो बताओ बच्चे ये मिन टर्म पहले क्लियर है जो मैंने एक्सप्रेशन राइट की है? सर जिसकी वैल्यू 0 होगी उसके ऊपर बार आ जाएगा। हाँ यही चीज इंपॉर्टेंट है, मैं जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं यही आपको देखने की जरूरत है। I have to represent min term by small m and max term by capital M. If I am write the 0, 1, 2, 3, 4 min terms are available in that, और उस 4 min term को M0 में 0 को हम बार में रिप्लेस करेंगे because min term we are dealing with their SOP form. Okay, 0, 1 A की वैल्यू 0 A बार लिख दिया, B को B क्या लिख दिया, 1, 0 A B बार हो गया। ओके, 1 plus 1 1 into 1 AB हो गया। Now go to the max term. Max term is now M0. It should be right A plus B. M1 is A plus B bar. M2 is now A bar plus B. A bar plus B means SOP and POS that are the both are inverse in nature. That is A bar B bar. A bar plus B bar. Clear all of you? सर इट मींस जो मैक्स टर्म्स में है और उसमें अगर 1 आता है तो उसके ऊपर बार लिखना है। हाँ बिल्कुल ठीक है बच्चे, वैसे ही वैसे ही। सर मैक्स टर्म का रिजल्ट फिर 0 आ जाएगा और मिन टर्म का रिजल्ट 1 आ जाएगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, अभी हम केवल एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि हमें मिन टर्म को कैसे लिखना है और मैक्स टर्म को कैसे लिखना है। मिन टर्म लिखेंगे 0 के ऊपर बार आएगी उस टर्म में वेरिएबल के ऊपर, और यहाँ पे मैक्स टर्म पे 1 के ऊपर बार आएगी, 1 के ऊपर बार आएगी और अकॉर्डिंग यू शुड हैव टू राइट इन द POS ऑपरेटर। इसलिए हमने इसको A plus B लिखा, A डॉट B नहीं लिखा, बिकॉज मैक्स टर्म में हमारा जो भी वेरिएबल होता है वी हैव टू राइट द प्रोडक्ट ऑफ सम। क्लियर? देखो यहां तक क्लियर है बच्चे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज समझनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। व्हाट इज द मिन टर्म एंड व्हाट इज द नॉन मैक्स टर्म and how it should be related with each other and how it should be representation with 0 and 1 and which variable should be used for them. It should be represent M capital M by min term and capital small m for M min term and capital M for your max term. Clear है बच्चे? देखो Yes sir. Yes sir. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन चेक आउट विद द 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल से इसकी रिप्रेजेंटेशन चेक करो। बार जैसे 0 0 0 है तो मिन टर्म मेरी है x बार y बार z बार, बार नीचे दिखेगी बाय सम डिफिकल्टी, तो उसके लिए आप देखो x बार y बार z बार लिखा जाएगा और M0 की वैल्यू क्या आएगी x प्लस y प्लस z। गो टू योर स्लाइड स्क्रीन। क्लियर है बच्चे? अब इसके अकॉर्डिंग आप 2 वेरिएबल हो जाए 3 वेरिएबल आ जाए जितने मर्जी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं, नो वन दिस मैटर थिंग। क्लियर है बच्चे? यहां तक बताओ व्हाट इज अ POS फॉर्म, व्हाट इज अ SOP फॉर्म एंड हाउ इट शुड बी रिलेटेड विद ईच अदर। यस सर। चले आगे। Yes sir. चलो अब सभी बच्चे एक बार ना जो मैंने स्लाइड्स की है वो वाली विंडो बड़ी कर लो, देख लो एक बार, वहां पे एक एक्सप्रेशन दिया गया, चेक करो
write SOP form of a boolean function f which is represented by the following truth table. उसपे 3 वेरिएबल दिए गए हैं, चेक करो x y और z। देख रहे हो सभी बच्चे? हेलो, यस सर। ओके, और उसका जो फाइनल रिजल्ट है, जो हमारी आउटपुट है, वो f दी गई है। ओके, f दी गई है, f का है हमारा फाइनल रिजल्ट। ये मैं बोर्ड पे बताता हूं आपको, ज्यादा अच्छा पता। f हमारा फाइनल रिजल्ट दिया गया है 3 वेरिएबल का। उसकी वैल्यू दी गई है 0 1 एंड 2 टाइम 1। ये आउटपुट आ रही है उसकी, यही आउटपुट आ रही है आपके पीपीटी में। बोर्ड पे देखो अब। नाउ हाउ यू शुड हैव टू राइट दिस एक्सप्रेशन आउटपुट इन द टर्म ऑफ, अब हमें इसकी आउटपुट चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ मिन टर्म। मिन टर्म ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय 1। ये आपकी मिन टर्म है सारी। सो मिन टर्म कौन कौन सी हुई? M1 0 1 2 3 4 5 6 7। This is your M6, this is your M7. So your final value of your expression is now equal to your f is equal to M1 plus M6 plus M7। अगर आप यही एक्सप्रेशन POS में लिखोगे तो you have to represent 0 on that, that is the M0 M2 M3 M4 plus M5। clear this one? 1 always represent your min term and 0 always represent your max term। okay, अब मान लो M1 की वैल्यू क्या है, स्क्रीन पे देखो, x y z की वैल्यू है 0 0 1, so that is the x बार y बार और z वैल्यू आ गई। M6 की वैल्यू क्या है 1 1 0, that is the x y z बार आ गई वैल्यू। और M7 की वैल्यू क्या है 1 1 1, so that is represent your x y z। और अब ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, that is your min terms, so min term we should always write in the term of your SOP form। so हमने जो फाइनल रिजल्ट पीपीटी में लिखा, that is in the form of your SOP। देखो ये एग्जांपल में किसी को कोई प्रॉब्लम बचे, चेक आउट दिस प्रॉब्लम कि हमें मिन टर्म और मैक्स टर्म को कैसे आइडेंटिफिकेशन करनी है, कैसे उस एक्सप्रेशन को हमने राइट करना है। एक्सक्यूज मी सर। सर इसमें आपने 0 0 वाली जो टर्म्स थी उसको आपने मिनिमम टर्म लिखा ना? नो 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 नो, वो मैक्स टर्म है। वो मैक्स टर्म दैट इज, मैंने अभी ना केवल कॉलम बोर्ड पे केवल ना f लिखा है। f है आपकी आउटपुट, ठीक है, x y z है आपकी इनपुट, दैट इज अ 3 वेरिएबल इनपुट, और f है आपकी आउटपुट। मैंने आउटपुट मेंशन की है और आउटपुट के अकॉर्डिंग मैंने एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था कि मेरी आउटपुट कैसे फाइंड आउट हुई है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस वन, 1 इज रिप्रेजेंट योर मिन टर्म और 0 इज रिप्रेजेंट योर मैक्स टर्म। तो मिन टर्म मेरी तीन बार 1 है, वो मैंने M1 M6 और M7 को रिप्रेजेंट किया और उसके अकॉर्डिंग हमने एक्सप्रेशन राइट अप कर दिया इन द फॉर्म ऑफ SOP। ये मिन टर्म थी, इसलिए हमने एक्सप्रेशन को किसमें राइट करना था, SOP फॉर्म में। बताओ अब किसी को प्रॉब्लम यहां तक? सर लेकिन ये जो ट्रुथ टेबल में z है वो कैसे लिखा है, वो नहीं पता चल रहा। बच्चे वो कुछ नहीं है, वो केवल 3 वेरिएबल की उसमें बाइनरी लिखी हुई है, 0 1 2 3 4 5 अप टू 7 तक। ओके, और नीचे सर सबको प्लस कर दिया f इक्वल्स टू, वो आउटपुट है कि f की आउटपुट क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ योर f। f की आउटपुट क्या है, आइदर यू हैव टू टेकन बाय द वैल्यू 1 से उसकी आउटपुट ले लो या 0 से ले लो। अगर 1 से लोगे तो वी हैव टू फोकस ऑन द 1 एंट्री बिकॉज़ वी आर राइट द एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ योर SOP। अगर मैं 0 से लेता हूं तो मुझे POS की तरह एक्सप्रेशन लिखना पड़ना था। यहाँ पे मेरे को इजी इसलिए हुआ कि मेरे पूरी f में 5 बार 0 है और 3 बार 1 है, तो मुझे एक्सप्रेशन लिखना किसमें आसान रहेगा, जिसपे 3 बार 1 है, तो आई हैव टू राइट द शॉर्ट एक्सप्रेशन ना। तो according to priority basis we are doing and solving the method by using SOP form। SOP कंपैरिजन हमारी इक्वेशन सॉल्व करना आसान होता है रिगार्डिंग द POS। अगर मैं यहीं पे M1 M6 M7 लिखा है तो अगर POS लिखता तो मुझे, मैंने जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, we have to take M0 M2 M3 M4 M5 5 टर्म लिखनी पड़नी थी।
अब क्लियर है? हाँ जी सर। बच्चे आगे स्क्रीन पे देखो, मिनिमाइजेशन ऑफ योर बूलियन एक्सप्रेशन. It should be canonical SOP, sum of min term. POS is the product of max term, is the derivation expression of a Boolean expression. Canonical form are not usually minimal. So leave that one, minimization हम करते हैं इसलिए, that is the कारण. ये इसके reasons है कुछ. Now minimization of your Boolean expression. Two methods can be applied to reduce the Boolean expression. अभी तक हमने कौन सा मेथड किया है किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए? That is using by your Boolean laws, and it should be also known as your algebraic method. Clear all of you? Clear है यहाँ तक? Yes sir. Okay. Now the second method we are using to minimize. अगर मान लो कि यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन बहुत बड़ा आ जाता है, तो तब हमें बूलियन एक्सप्रेशन से सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. मिनिमाइज करते करते, मल्टीप्लाई करते, लॉस लगाते करते, हो सकता है अगर इस क्वेश्चन में अगर 10-15 हमारे पास मिन टर्म्स आ जाए तो वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन बाय यूजिंग योर अलजेब्रिक मेथड. तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे एक सेकंड मेथड डेवलप होता है. वैसे हमारे पास अकॉर्डिंग टू योर मिनिमाइजेशन वी आर अचीविंग द 3 मेथड. वो तीनों के तीनों आपके सिलेबस में है. फर्स्ट वन इज नाउ अलजेब्रिक, सेकंड वन इज नाउ के मैप, दैट इज गिवन इन दैट यूजिंग कार्नोल मैप. That is a very easy method and very useful method to minimize each and every expression. Okay, यहाँ पे एक थर्ड मेथड भी आपका आता है, that is the QM, Kuhn-Mackenzie method. That is a very lengthy method. वो भी हम K map के बाद करेंगे. तो सबसे पहले हम go to the forward to the next step, that is by using Carnot map और K map. That is a very important topic. सभी ध्यान से बच्चे सुन लो, जो K map हमें आना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू एंड ऑफ योर डीसीएलडी. डीसीएलडी को अगर अच्छी तरह समझना है तो हमें के मैप बहुत अच्छी तरह आना चाहिए. के मैप पे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. हम नेक्स्ट पीपीटी में शेयर करता हूं आपसे. Now, इसमें सबसे पहला मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन जैसे अलजेब्रिक के मैप. तो अलजेब्रिक के मैप से हमने अलजेब्रिक मेथड कर लिया. डिफरेंट बूलियन रूल्स एंड थ्योरम आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन इन दिस मेथड बिकॉज़ वी आर यूजिंग डिफरेंट लॉस एंड द थ्योरम. ड्युअलिटी थ्योरम हो जाए या इट मे बी अ डी मॉर्गन थ्योरम. ये कुछ एक्सप्रेशन है मिनिमाइज के लिए. ओके, नाउ गो टू योर के मैप. के मैप डिस्कस करते हैं बच्चे. K-map is an abstract of the Venn diagram organized as a matrix of a the Carnot map provides a simple and straightforward method for minimize Boolean expression. Okay. सर रिपीट करना है. ये जो पीपीटी में स्लाइड में जो है मैं वही डिस्क्राइब कर रहा हूं आपको. K-map provides a simple and straightforward method of minimizing the Boolean expression. With the K-map or Carnot map, Boolean expression having up to 4 and even 6 variable can be simplified. 4 और 6 वेरिएबल मींस मान लो कि जहां पे हमने एक हमारी मिन टर्म होती है, उस मिन टर्म में अगर 6 वेरिएबल आ जाए मींस A B C D E F,
So that is a very easily method to solve up to your 6 variable. अगर मान लो वही 6 वेरिएबल की 10 टर्म आ जाए तो that is very difficult to solve with the help of your algebraic method. वो बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे आप कंफ्यूजन हो जाएगा, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा. So up to your 4 to 6 variable in each and every min term, that is the K-map is very useful to minimize them. K-map provides a pictorial method of grouping together expression with common factors, therefore eliminating unwanted variables. The Carnot map can also be described as a special arrangement of a table. Now, K-map के बारे में बताऊंगा आपको. सबसे पहले है हमारे पास, अंडरस्टैंड योर, बोर्ड को देखो बच्चे, सभी बोर्ड को देखो, मैं बोर्ड से समझा रहा हूं, सभी एक्यूरेट बोर्ड को विजिबल कर लो सभी. 2 वेरिएबल के मैप, 2 वेरिएबल है, मींस वी आर यूजिंग 2 वेरिएबल ए एंड बी. 2 वेरिएबल है, सो मींस इट शुड बी रिक्वायर्ड 2 raised to power 2 4 boxes for that. This is a pictorial representation of the 2 variable K map. Okay, 2 variable K map mean A and B. 2 variable है, so mean it should be requirement of your 4 boxes at a time. Clear? Because it is 2 raised to power 2 4 means 4 possible combinations. Means 2 variable से हमारी कितनी possible combination है? 2 raised to power 2, that is the 4, and the 4 boxes are requirement. A should be represented by arrow this side and B. आप A को चाहे इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो, that is the same manner, that is depend upon you. Clear all of you? Now represent the boxes. This is your 0, this is 1, this is your 0, this is 1. Means 0 mean this is A bar, this is A. This is 0 mean this is B bar and this is B. पहले बताओ यहां तक बच्चे क्लियर है सबको? All of you clear up to this one? I have 2 representation of the 2 variable K map with the possible 4 possible combination. Yeah, tell. Clear है बच्चे यहां तक? Yes, sir. Yes. Now, वैल्यू दी गई है, फॉर एग्जांपल इस बॉक्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम 0 से, इसको 1 से, इसको 2 से, इसको 3 से. 0 पे क्या वैल्यू आई? A भी 0 है, B भी 0 है. B पे क्या वैल्यू आएगी? 0 एंड 1. A इस बॉक्स के पे क्या वैल्यू आएगी? 1 एंड 0. C पे क्या वैल्यू आएगी? A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू क्या है? 1. पहले देखो यहां तक रिप्रेजेंटेशंस 2 वेरिएबल तक सबको समझ आ गई? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वन? अगर ये पता लगेगा तो आगे चलेंगे बच्चे हम. सर ये जो बॉक्स में जैसे आपने फिल करा ना, एक बार बताना, जो बॉक्स में आपने ए बी को. दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एंड बी. ए की वैल्यू 0 पहले आ गई, फिर 1 आ गई. बी की वैल्यू भी ऐसे 0 आ गई और 1 आ गई. क्लियर? सर एक्सक्यूज मी. चल सर ए बार और ए हम तब नहीं सजेस्ट करते कि हमें मिनिमाइजेशन चेक करनी है और मैक्सिमाइजेशन. क्या 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 कह रहे हो? सर एक डाउट था कि ए बार जब हम लिख रहे हैं तो सिर्फ हम जैसे मिनिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, तब सर ए बार को 0 मानेंगे? ए बार को 0, ए बार 0, 1 को ए मानेंगे. यस सर. ओके, सॉरी पर एक बार दोबारा देख लो जिनको डाउट है. आई हैव एक्सप्लेन वन मोर टाइम. ए एंड बी 2 वेरिएबल. ओके, ए एंड बी. ए की वैल्यू 0 लिखी, फिर 1 लिखी. बी की वैल्यू 0 लिखी एंड 1 लिखी. बी रिप्रेजेंट 0 मीन बी बार. बी बार मीन दैट इज इन द टर्म ऑफ योर एसओपी. इसलिए हम ये एक्सप्रेशन अभी एसओपी में बना रहे हैं, इसलिए मैं 0 को बी बार लिख रहा हूं. अगर मैं ये पीओएस में ले लूं तो मैं 0 को बी लिखूंगा. बात समझ लगी मेरी? हेलो, क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर, क्लियर है. मिन टर्म में मैं 0 को क्या लिखता, बार में लिखता था ना वैल्यू को, वेरिएबल को, वही यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है. क्लियर?
तो 0 1 लिख दिया, 0 1 लिख दिया। बॉक्सेस की रिप्रेजेंटेशन क्या है? 0 1 2 एंड 3। सर ये मींस की डिपेंड करता है कि एसओपी है कि पीओएस है हाँ, ना। अभी हम ये एसओपी पे कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग 0 विद योर बार। यस सर। ओके, अगर यहाँ पे पीओएस की तरह रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। नाउ 0 पे बॉक्स की वैल्यू पे ए और बी की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू भी 0 है, बी की भी 0 है। 1 पे ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है। ये कॉरस्पॉन्डिंग देखने हैं आपने कॉलम ए और बी की वैल्यू। यहां पे देखो इस बॉक्स में ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है? वर्टिकली हॉरिजॉन्टली 0। यहां पे 1 है और यहां पे 1 है। देखो क्लियर है बच्चे? दिस इज रिप्रेजेंटेशन योर मिन टर्म 0 1 2 3। 4 दो वेरिएबल है, 4 कॉम्बिनेशंस होंगी। 4 कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग 4 मिन टर्म्स होंगी, 4 बॉक्सेस बनेंगे। 0 1 2 3 आर द 4 मिन टर्म्स फॉर दैट। क्लियर है बच्चे? यहां तक चले आगे? All of you clear? Now go to the 3 variable Yes, case. If we are using 3 variable K map, how many possible combinations? 9. 3 variable 9. K map. 3 variable K map. 8 sir 9. How 9? Sir, 8. 8. That is 8. 2 raised to power 3. 8 min terms, 8 boxes are required. Not Yes 9. sir. Okay. Yes sir. So I have to draw the boxes. Yes, sir. To the 8 boxes. This is A. This is your B, C. 3 वेरिएबल काम आएंगे हमारे यहाँ पे। ओके, आई हैव टू ड्रॉ दिस वन बाय यूजिंग 8 बॉक्स। 1 2 3 8 बॉक्स। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट ए एंड बी सी। देखो अब चेक करना, ए की वैल्यू क्या आएगी? 0 एंड 1। ऐसा ही होगा बच्चे? हेलो एवरीवन। यस सर। देन हाउ टू रिप्रेजेंट योर बीसी। बीसी की वैल्यू यहां पर क्या आएगी सबसे पहले? 0 0 0 0। नेक्स्ट 0 1। नेक्स्ट 1 0 1 0 1 0। नेक्स्ट 1 1। So that is the representation of your K map. यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस की है, यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस की है, सबने देखा होगा कि 0 0 था, 0 1 है, 1 1 यहाँ पे आना चाहिए था, मैंने 1 0 यहाँ पे लिख दिया। Yes sir. यही कुछ चेंज हुआ है इसमें। So now, yes sir, that is a big thing in your K map. In K map, coding should be done by using gray code. ग्रे कोड में क्या होता था? याद है सबको जो मैंने ग्रे कोड करवाए थे? Each and every successive bit should be change of 1 bit at a time. ग्रे कोड में हमने ऐसे पढ़ा था कि हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो केवल 1 बिट चेंज होगी। और यहाँ पे मेरी वैल्यू थी, सबसे पहले मैंने 0 0 लिखी, 0 1 लिखी। यहाँ पे कितने बिट की चेंज थी? ओनली 1 बिट। हेलो हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। Yes sir. एक सेकंड आई विल वंस अगेन। इसके बात करें अब, सबसे पहली वैल्यू क्या थी? 0 0 0 0 0 1। तो सेकंड में मेरी कितने बिट की चेंज आई? 1 बिट की। अगर मैं यहाँ पे 1 0 लिखूं तो कितने बिट की चेंज आ गई है? 1 बिट की। 2 बिट की चेंज आ गई। अगर मेरा नेक्स्ट एक्सप्रेशन 1 0 लिख दूं यहाँ पे तो वो हैव टू 0 की जगह 1 हो गया, 1 की जगह 0 हो गया। दैट इज अ 2 बिट चेंज एट ए टाइम। सो दैट इज नॉट ए पॉसिबल इन K map. In K map only 1 bit change at a time according to gray code. इसलिए मैंने यहाँ पे 1 1 लिख दिया। 1 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 बिट का चेंज आया। यस सर। और 1 0 के आगे भी कितने बिट का चेंज आया? केवल सिंगल बिट चेंज।
that is the representation of the K map in the case of your three variable. And how to write the min term here? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. देखो बच्चे इसकी min term की representation है. सर रिपीट कर दो सर. In the three variable K map, we are requirement of the 8 possible combinations. 8 possible combinations आएंगी, so you have to make 8 boxes for that. 8 min terms चाहिए, तो 8 boxes काम में आएगा. तो इसके लिए क्या करेंगे, मैंने एक वेरिएबल ले लिया A and BC वेरिएबल, we have to take that one. A की वैल्यू होगी that is A bar A, और यहाँ पे वैल्यू आएगी B bar C bar, B bar C, BC and the BC bar. Clear? We have to change this one by using the gray code 0001 1011 0 1 2 3 4 5 6 and 7. Clear this one? How to represent your K map in the case of your three variable? बच्चे देखो क्लियर हुआ सबको यहां तक? यस सर. ये अभी केवल हमने पिक्टोरियल डायग्राम देखी है कि तीन वेरिएबल को कैसे करेंगे. अभी हमने कोई मिनिमाइजेशन कुछ नहीं किया, वो आगे करेंगे एग्जांपल से, तो हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे. बस अब अभी ये पढ़ रहे हैं कि के मैप को हमने डिजाइन कैसे करना है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है उसकी. यहां तक क्लियर है थ्री वेरिएबल. चले आगे. नाउ गो टू योर फोर वेरिएबल. फोर वेरिएबल के लिए हमें कितने वेरिएबल चाहिए? 4. हेलो एवरीवन. यस सर. 4 वेरिएबल. So means you have to require A, B, C and D. 4 variables are required. Listen carefully बच्चे. 4 वेरिएबल चाहिए इसके लिए आपको? Yes sir. How many possible combinations and how many min terms for the 4 variable? 16 boxes and the 16 min terms are required. ये 16 boxes हो गए हैं आपके. Okay, so that is a representation A, B and C, D. वो आप चाहे जिधर मर्जी लिख लो, उसका कोई फर्क नहीं है. ठीक है बच्चे? क्लियर है बच्चे? Now, how to represent A, B? 0, 0, 0, 1. ये अभी A, B को रिप्रेजेंट कर रहे हो. क्लियर? इन द टर्म ऑफ योर शॉप. आगे क्या आएगा? 1, 1 1, 1 1, 0. यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर. नाउ CD को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 0, 0. नेक्स्ट क्या होगा? 0, 1 नेक्स्ट 1, 1 1, 1. सिमिलरली जैसे यहां पे हुआ है वैसे यहां पे भी होगा. क्लियर एवरीवन? सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए C bar D bar, C bar D, this is CD, this is C D bar. क्लियर है? सिमिलरली दिस इज A B bar, A B, A bar B and A bar B bar. क्लियर है बच्चे ऑल ऑफ यू? Now how to represent your min term? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. देखो क्लियर है बच्चे? This is a pictorial representation of your K map by using 4 variable. Check out this one. All of you check. सर के मैप का यूज कब होगा? अभी कर रहे हैं बच्चे, अभी करेंगे. ये भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए बच्चे. सर ये हमने 8, 9 जो 10, 11 वाली जो लाइन है वो हमने नीचे क्यों लिख दी है? अब देखो
जब हमने ऊपर वाली लाइन पे राइट अप किया था 0132 को, तो उसके अकॉर्डिंग 2 3 चेंज हुआ था, ये चेंज हुआ था ना, 2 इधर आ गया 3 इधर आना था ना, क्योंकि 1 1 था, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी वैल्यू तो चेंज हो रही है, तो इसके लिए ये फिगर नीचे आनी थी, ये ऊपर जाएगी ना। अब आप ये चीज देखो, जहां पे मैंने मिन टर्म लिखी हुई है, देखो उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू सेम हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है कि नहीं हो रही? चेक करो। सर समझ नहीं आया क्या पूछा आपने? ये चीज चेक करो। अब मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी है 0 1 2 एंड 3, ये चीज पता लग गई है सबको? ये बिकॉज वी हैव चेंजिंग द सिनेरियो ऑफ बाय यूजिंग ग्रे कोड, इसलिए मैंने 3 इधर लिखा, 2 इधर लिखा, 4 5 6 और 7। क्लियर दिस वन? वी हैव टू अंडरस्टैंड अप टू द 3 वेरिएबल। जब 4 वेरिएबल आए तो मेरा वर्टिकली भी तो चेंज हो गया बच्चे, ये भी तो रिवर्स हो गया। ये 1 0 यहां पे आना चाहिए था, मैंने यहां पे लिखा है अकॉर्डिंग टू योर के मैप रिप्रेजेंटेशन। अब आप ये चीज देखिए, अगर मैं 13 मिन टर्म है मेरी यहां पे, ए बी सी डी मेरे पास 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है मेरे पास, ठीक है। ए बी सी डी मींस ऐसे लिखा जाएगा, ए बी सी डी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7? 7 की बाइनरी क्या होती है इन टर्म ऑफ 4 बिट? 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1। यस सर। तो ए बी की वैल्यू क्या है बच्चे? 1 1, यहां से आ गई, और सी डी की वैल्यू क्या आ रही है? 0 1। तो मेरी ये 7 की बाइनरी होगी। देखो रिप्रेजेंटेशन ठीक हो रही है मेरी? यस ठीक है बच्चे, ये इससे समझ करो, ये मैं आई हैव टू रिप्रेजेंट द मिन टर्म हियर, हाउ टू आइडेंटिफाई द मिन टर्म हियर। ये आज समझ लो, नेक्स्ट बार हमने इसके ऊपर एग्जांपल ही करेंगे। अब ये देख लो, मान लो 13 पे चले जाओ, 13 की 4 वेरिएबल की बाइनरी क्या होती है? 0 1 1 1, यही बाइनरी होती है 13 की। यस तो नाउ रिप्रेजेंट 13 पे देखो वैल्यू क्या आ रही है बाइनरी की। ए बी की वैल्यू क्या है? 0 1, और सी डी की वैल्यू क्या आ रही है? 1 1। So that is the binary of 13. Yes sir. Exactly similar. How to represent your horizontally? Similarly, we have to represent your vertical here according to change. You have to eliminate that one. आप AB को इधर भी लिख सकते हो, CD को उधर भी लिख सकते हो। Clear? इसलिए मैंने यहाँ पे ABCD लिख दिया। अगर आपने कोई AB यहाँ लिखा होता, then I have mentioned here ABCD. That is a notification by at your end. आप किसी भी तरह मैनिपुलेट कर सकते हो इसको। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? किसी को डाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द के मैप? 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल के मैप? सर ABCD कैसे जैसे मर्जी ले सकते हैं ना? हाँ बच्चे, वो आप किसी भी तरीके कर सकते हैं कि ABCD मींस जैसे आप यहाँ पे AB ले लो, वो ज्यादा इजी रहेगा, यहाँ पे CD ले लो, इससे कोई फर्क नहीं है आपको। यस सर। क्लियर? एक बेस्ट मेथड मैं आपको करा दूंगा, आसान सा मेथड आपको इजी वे कराऊंगा कि आप उसी से सॉल्व करो, उसी से ही मेथड आपको सॉल्व करोगे तो इजी रहेगा। ये जितना भी हमने एक्सप्रेशन लिखा है, वी हैव टू राइट दिस एक्सप्रेशन दैट इज द मैनर ऑफ योर एसओपी। क्लियर? तभी हमने जीरो को उसके अकॉर्डिंग, जीरो को बार मान रहे हैं और 1 को सिंपली ले रहे हैं। देख लो यहां तक बच्चे, डाउट किसी को? नेक्स्ट लेक्चर में अब इसके बेस पे हम एग्जांपल्स करेंगे कि हाउ टू, कैसे हमें इक्वेशन आएगी, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? यस सर। चेक करो किसी को प्रॉब्लम है अपने आपके एंड पे? नो सर। नो सर। यहां तक हमने जितना भी डिस्कस किया है, कोई कुछ प्रॉब्लम बच्चे? नो सर। सर आज के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम सर। सर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स सर सेंड कर दो। प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉब्लम सेंड कर लूं ना, यही कह रहे हो? आज तो फिर इसने बूलियन एक्सप्रेशन के इसमें एक्सप्रेशन दिए गए, इस पीपीटी को मैं आपको शेयर कर दूंगा। देखो ये जो स्लाइड्स करना है, शेयर कर देना फिर बूलियन एक्सप्रेशन वाली पीपीटी पिछली भी मैंने शेयर कर दी थी, नेक्स्ट वाली भी कर दूंगा। देखो ये जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करके देखो, बाकी गूगल से एक्सप्रेशन कर दो, एक्सप्रेशन तो बहुत आ जाएंगे, आपके बुक है तो उससे सॉल्व करके देखो। ये देखो स्लाइड में कुछ मैंने एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उसको मिनिमाइज करवाया गया, 3 एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। क्लियर? उसके बाद के मैप है, ये सारी वही स्लाइडें जो मैंने अभी आपको ब्लॉग में समझाया।
पहले हमने केवल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही की है कि 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल को के मैप को कैसे हम शो करते हैं। क्लियर सर? और क्लास की रिकॉर्डिंग भी डाल देना सर। रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे। रिकॉर्डिंग पे ना कई बार टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं। कोई किसी भी बेसिकली मैं आपको ना वन थिंग ये चीज अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि जैसे आज के लेसन से हमने बूलियन एक्सप्रेशन किए हैं और के मैप कर रहे हैं, दैट इज द स्टार्ट बेसिक। पहले पिछला जो भी था लॉजिक 8 तक हमसे स्टार्ट हो गया डीसीएलडी। ये चीज को अवेयर करना आगे आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये सारी चीजें हमारे काम में आती जाएंगी। तो यू हैव टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग फॉर दैट। यहाँ तक पता होनी चाहिए सभी चीजें आपको, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। यस सर। ठीक है, जो के मैप तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे बहुत सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास काम आता है ये। तो जैसे मैंने अभी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करवाई है, ये आगे अंडरस्टैंड करते रहना है इसको अच्छी तरह। क्लियर? ओके बच्चे, थैंक्स लॉट, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Okay, sir. Okay बच्चे, if you feel any problem then call to me regarding the up to your boolean expression, boolean algebra, SOP, POS, max term, min terms and the only the just pictorial representation of K map. Next हम इसके आगे ग्रुपिंग पढ़ेंगे, इस K map की जितनी भी डिस्कशन है वो आगे करेंगे with your different examples. Okay, sir. Yes, sir. Thanks a lot. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.